भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश किया, जिसमें 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। साथ ही बुजुर्गों को भी टैक्स में डबल छूट दी गई है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों को कम करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कारें अब पहले के मुकाबले कम कीमत पर खरीदी जा सकेंगी। इसके साथ ही यह भी कहा कि लिथियम आयन बैटरी पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस ईवी सेक्टर पर रहने वाला है। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का प्लान करने वालों के लिए बड़ी राहत मिली है। Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1 lakh 10,000 rupees. That is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. महाकुंभ में हुई भगदड़ के तीसरे दिन सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। सबसे पहले वह संगम तट पर पहुंचे, जहां भगदड़ हुई थी। कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने घटना की वजह पूछी। करीब 10 मिनट तक योगी वहां रुके। बता दें, महाकुंभ में मौनी अमावस्या 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ हुई थी। सरकार के मुताबिक हादसे में 30 की मौत हुई, जबकि 60 लोग घायल हैं।
तो आपको बता दें कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम ने निरीक्षण किया, अधिकारियों से उन्होंने सवाल भी पूछे। यहां पर जो भगदड़ हुई थी उसके बाद यहां पर उस भगदड़ की पूरी वजह क्या रही और आगे से इस तरीके की कोई भी घटना यहां पर ना हो, इसको लेकर भी उन्होंने वहां पर निर्देशित किया है। तो सीएम योगी ने निरीक्षण किया प्रयागराज के उस तट पर जहां पर रात 1:30 बजे मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हो गई थी। हादसे में अभी तक सरकार के मुताबिक 30 की मौत है, जबकि 60 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है, साथ ही उस तट पर भी पहुंचे हैं जहां पर यह भगदड़ वहां पर हुई थी। अधिकारियों से सवाल भी पूछे हैं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अभी तक सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जो घायल हुए थे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। राशिद, मुख्यमंत्री का वहां पर निरीक्षण करना और अधिकारियों के साथ किस तरीके की बातें वहां पर हुई हैं, अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या फीडबैक ली गई है उस रात की जब भगदड़ हुआ था? नहीं देखिए रवि, आपको बता दें 28 जनवरी को देखिए प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ हुई थी उसमें जो है 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग उसमें घायल है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी वहां पे कुंभ में जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो पुख्ता रखे जाए। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो श्रद्धालुओं की मौत हुई थी उनको लेकर शोक व्यक्त किया था और उसी के बाद में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बराबर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद थे। उसी को लेकर 3 दिन के बाद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ पहुंचे और वहां पे जायजा ले रहे हैं। देखिए आपको बता दें कुंभ में जो लगातार भीड़ उमड़ रही है, मौनी अमावस्या के दिन भी जो है आपको ने देखा होगा कि प्रयागराज में कदम रखने की जगह नहीं थी, तो कहीं ना कहीं तमाम जो है वीआईपी प्रोग्राम भी लोग कैंसिल इसीलिए किए जा रहे हैं। उनसे प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है कि वीआईपी प्रोग्राम जो है मौनी अमावस्या के बाद में रखा जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज कुंभ पहुंचे और कुंभ में पहुंचने के बाद में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया, क्योंकि एक बार बता दें कि हम लोगों के पास सूचना आ रही है कि कुंभ में जो पीपे वाला पुल था वो कहीं ना कहीं टूट गया, उसको लेकर श्रद्धालु जो है वहां पे फंसे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री सारी चीजों पे नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री वहां प्रयागराज गए, प्रयागराज जाने के बाद कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद उनसे घटना की वजह पूछी और कहीं ना कहीं देखिए ये माना जा रहा है रवि कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को लेकर बड़ा संजीदा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी देखने को आपको मिलेगी। देखिए कुंभ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी थी, भगदड़ किस वजह से हुई, कैसे हुई, क्या अफवाह फैली, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी थे एक जांच कमेटी बना दी गई जिसमें पूर्व न्यायाधीश भी है। तो कमेटी भी अपनी जांच करेगी, जांच करने के बाद में रिपोर्ट जो है शासन को सौंपेगी। उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निरीक्षण किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जी बिल्कुल राशिद, अभी मौजूदा वक्त में बात की जाए तो किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त प्रयागराज में बनी हुई हैं और साथ ही जो लोग घायल हैं जिनका आंकड़ा 60 सरकार ने दिया है उनकी क्या स्थिति है? नहीं देखिए आपको रवि बता दूं कि 30 लोगों की मौत का जो है आंकड़ा सामने निकल के आ रहा है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि ज्यादा भी लोगों की इसमें मौत हो सकती है। कैजुअलिटी देखिए बड़ी थी, कहीं ना कहीं 60 लोगों की बात आ रही है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए थे कि कुंभ मेले में के आसपास जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो श्रद्धालु अगर कोई भी आता है जख्मी हालत में तो उसको वापस न किया जाए, सरकार इसका भुगतान करेगी। देखिए एक बात बता दें 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जानकारी हम लोगों को जो सूत्रों से मिल रही है वो ज्यादा की मिल रही है कि इसमें कैजुअलिटी जो है बड़ी हुई है। तो मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें पूरे देश में सबसे बड़ा जो है आस्था का कुंभ महाकुंभ जो चल रहा है उसमें श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश विदेश के लोग भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा भी पूरे देश से और विदेश से भी लोग आ रहे हैं। इसकी वजह से संख्या वहाँ पे बढ़ गई है और आप खुद इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन सुबह 9 बजे तक के तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। तो लगातार कहीं ना कहीं वहाँ जो है प्रयागराज में तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। 1000 बसें भी लगाई गई थी, सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए, बेहतर इंतजाम किए गए। लेकिन जो घटना हुई उसकी जांच जो है पूरी जो हो रही है कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है राशिद, आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया आपका। चले आगे बढ़ते। लखनऊ में सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए पीएम मोदी पर राष्ट्रपति
के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी के वक्तव्य का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने जो भी कहा वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंतर्गत कहा। जहां तक राष्ट्रपति के अपमान का सवाल है, पीएम मोदी ने खुद कई बार उनका अपमान किया है। अभिभाषण में कंटेंट की होती है, जो उसमें लिखा होता है, जो बोला जाता है, सबको मालूम है। जिसे लोकतंत्र में विश्वास है, मुखार बिंदु से तो राष्ट्रपति के आता है, पर वो सरकार का 1 साल का कामकाज की रूपरेखा है जो मोदी सरकार ने दिया है। जहां तक सवाल है अपमान का राष्ट्रपति का, अरे राष्ट्रपति का अपमान तो मोदी जी ने आपने एक बार नहीं बार बार किया है। हम तो सम्मान करते हैं। याद करिए जरा, जब इसी संसद भवन का जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी आधारशिला रखी जा रही थी, तो कोविंद जी अनुसूचित जात के थे, राष्ट्रपति थे, संवैधानिक मुखिया थे, उस मंदिर के मुखिया थे। उनको आपने न बुला के दलितों, अनुसूचित जाति का अपमान किया था। प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा के विवाद को लेकर यूपी से लेकर उत्तराखंड में भी हलचल है। अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दोनों का समझौता कराने के लिए आगे आ गए। उन्होंने कहा कि हम पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश शर्मा के बीच समझौता कराने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं और दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश करेंगे। दो ताकतवर लोग हो जाए तो उनके बीच में भी जाना चाहिए। भाई लड़ाई किसी की भी हो जाओ तो बिचौलवा तो चाहिए, उसमें भी छूट छुटावड़ा तो चाहिए। कुश्ती भी जब खाड़े में शुरू हो जाए, बराबर यहाँ हो जाए, तो उसे भी छुटाना वाला चाहिए। तो समाज के लोगों को आगे आना चाहिए ऐसे मामलों में। समाज उससे बट रहा है और दोनों समाज अब अपनी पंचायत कर रहे हैं। किसकी गलती है क्या रही, अब इस चैप्टर को यहीं खत्म करके और सामाजिक लोगों को आगे आकर दोनों को समझाना चाहिए उनको। लखीमपुर खीरी की गोला कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार बदमाश पर कई थानों में बहुत से केस दर्ज हैं। 25,000 के इनामिया आदिल उर्फ समीउल्ला निवासी बुड़वारा थाना गोला, जिस पर पूर्व से 12 मुकदमे गौकशी, चोरी, गैंगस्टर के दर्ज हैं तथा दिनांक 27/1/25 को गौकशी के प्रयास में भी ये वांछित था। पुलिस की 2 टीमें इसकी गिरफ्तारी हेतु लगी हुई थी। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त जमुनाबाद फार्म की तरफ जा रहा है। तत्काल टीमों के द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को पुलिस टीम के द्वारा घिरा दे, इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जो अभियुक्त के बाएं पैर में लगी और गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। तत्काल अभियुक्त को उचित उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ कुंभ नहाने गया युवक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। युवक की पत्नी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर भी वायरल किया, जिसमें वो अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति की बरामदगी की गुहार लगाती नजर आई। जिला बिसौली थाने मेरा पति, बधाइयों कि मेरा पति आज 4 दिन हो गया नहीं मिला। थोड़ा सा हेल्प कर दो सजने, मेरी हेल्प कर दो, मेरा पति मिल जाए बस। मैं चारों बेटी लेके बैठी हुई हूँ। इटावा के लवेदी थाने के सामने भारतीय स्टेट बैंक में डीबीआर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही उसके अन्य 5 नाबालिग साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सीसीटीवी कैमरे की डिवाइस भी समेत वहां पर बरामद की गई है।
देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 24-25 की रात में जो है 26 जनवरी को सूचना मिली थी कि 24-25 की रात में जो थाना लवेदी के सामने बैंक है SBI का, उसमें पीछे से सेंध काट करके जो है बदमाश घुसे थे। उन्होंने जो है CPU और बैटरी इत्यादि काफ़ी सामान चोरी कर लिया था। राउटर भी था उसमें और कीबोर्ड था, बैटरियां थी, DVR था, स्कैन मशीन थी, CCTV कैमरे थे और तमाम और भी सामान थे जिसका चोरी उन्होंने कर लिया था। और इसमें बाद में जब पूछताछ की गई, टीमें गठित की गई थी CO भरतना SPRA साहब के नेतृत्व में और SOG सर्विलांस की टीम इसमें लगाई गई थी। तो इसमें एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर फिर पुलिस उसमें चेकिंग करती है। तो एक बदमाश अंकित चौहान नाम का है जो कि मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो उसको जब पुलिस इंटरसेप्ट करती है तो पुलिस फायर करता है जिससे उस पर बाएं पैर में से गोली लगती है पुलिस के काउंटर फायरिंग में और फिर उसको आवश्यक चिकित्सा भी प्रदान की जाती है और फिर आवश्यक बल लगा करके सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है। उसमें सभी से पूछताछ की जाती है। उन्होंने जो है उस दिन की घटना जो 24-25 की रात थी उसको स्वीकार करते हैं और ये भी बताते हैं कि जहाँ पर वो क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर ये उन्होंने देखा है कि बैंक की जो गतिविधियाँ होती थी वो वहाँ से अंदर से वॉच करते थे। इसी दौरान कुछ अपने जो गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में बताया गया है कि वो कुछ पैसे उसे की डिमांड या शौक अपना पूरा करने के लिए, साथ ही साथ मोबाइल आईफोन की शौक के पूरा करने के लिए भी इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और यद्यपि पूरी सफलता इनको नहीं मिली थी लेकिन तब भी इन्होंने जो है सेंध काट करके बैंक में घुस करके CCTV कैमरा काट दिया था, अलार्म काट दिया था और तमाम सामान चोरी कर लिए थे जिसको बरामद कर लिया गया। 100% बरामदगी की गई है तथा सभी बाल अपचारी जो 5 मुलजिम हैं, साथ ही साथ अंकित चौहान को आवश्यक बल गिरफ्तार कर लिया गया है तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। बुलंदशहर के देहात क्षेत्र में कुख्यात गैंगस्टर रवि काना के भांजे की सरेआम गुंडे का मामला सामने आया। बुलंदशहर में रवि काना गैंग के सदस्य ने पावर कॉर्पोरेशन में तैनात जूनियर इंजीनियर के बेटे से XUV और पिस्टल छीन ली, साथ ही उसके बीच वो फरार हो गए। वहीं जूनियर इंजीनियर की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक रवि काना गैंग का सदस्य है राजू अधाना, उसके सगे मामा का बेटा, उसका गुर्गा है सर। ये शातिर अपराधी है। ये मेरे बेटे से गाड़ी छीन कर ले गया, क्रिमिनल है ये। और ये मुझे धमकी आ रही है, कल भी मुझे शाम को धमकी दे के गया है। रवि काना एक शातिर अपराधी है, वो अभी बांदा जेल में बंद है। उसका सगा वो है भांजा, उसका सगा मामा का बेटा है ये जो है राजू अधाना जो सर मैंने गाड़ी का लेन देन का मसला ये था, मैंने इनसे गाड़ी खरीदी थी, 9.5 लाख रुपए मैंने दे चुका हूँ और उसके अलावा 11 EMI पे कर चुका हूँ। लेकिन अब इनके बदनीयती आ गई है ना, ये गाड़ी देना चाहते हैं और बदमाशी के दल पे यहाँ और भी अवैध काम कर रहे हैं जिनको मैं सर को आज बताऊँगा। आज दोपहर को हमारे समक्ष एक प्रकरण सामने आया जिसमें वादी हैं भास्कर कुमार गुप्ता जो एक जूनियर इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल महिपाल से उन्होंने एक गाड़ी ली थी जिसकी किस्त वो पूरे साल चुकाते रहे। इसी महीने में कुछ पैसों का लेन देन को लेकर महिपाल का पुत्र राजू वह गाड़ी अपने साथ ले गया। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभी तमंचे और लूट जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जांच के अनुसार की जाएगी।